You stop. You made your point, ma'am. Honorable members, nothing is going on record, ma'am, after this. Honorable members, if the House agrees, the lunch hour may be dispensed with, and the House may also sit late till 8 p.m. today to avail the time allotted to the general discussion on the budget. Do I have leave of the House to dispense with the lunch hour and sit late today accordingly? Question hour. Question number 76, Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. Question number. आदरणीय Just read the question number, numerical number. क्वेश्चन नंबर 76 Honorable Minister. Sir, statement is laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आपके नेतृत्व में पशुधन का आरोग्य सुखकारी होने के लिए वेटरनरी मेडिसिन के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो सराहनीय है। मैं केंद्र सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि वेटरनरी मेडिसिन में रिसर्च एवं क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए क्या केंद्र सरकार आगे कदम उठा रही है क्या? Honorable Minister. Sir, insofar as the research in veterinary medicines and drugs and vaccines is concerned, we have many scientific bodies and research institutes under the other ministries of the central government. I would like to name a few bodies. The Indian Council of Agriculture Research has IVRI. There's also National Institute of High Security Animal Diseases under ICAR, the National Research Center on Equines under ICAR, National Institute of Foot and Mouth Disease under ICAR, and various other research institutes. These scientific bodies and institutes are functional under the other ministries, and they work towards the necessary research which is needed in the field of veterinary drugs and vaccines. Insofar as clinical trials are concerned, sir, that is being looked after by the Central Drugs Standards Control Organization, which falls under the Ministry of Health and Family Welfare. Second supplementary, Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या CDSO पशु आहार में अडल्ट्रेशन को सख्ती से पेश आने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देने पर आगे विचार कर रही है क्या? माननीय मंत्री जी. Sir, as and when required, we pass on the necessary instructions to the state government bodies. Third supplementary, Susri Swati Maliwal. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this very important issue. Sir, हम आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से कहीं पे भी कोई जानवर, कोई पक्षी घायल हालत में पड़ा हुआ होता है। कभी कोई गाय पड़ी हुई होती है, कभी कोई कुत्ता पड़ा हुआ होता है, कभी कोई बिल्ली पड़ी हुई होती है, कभी कभी तो सर उनमें कीड़े भी लगे हुए होते हैं। और आम लोग, काफ़ी लोगों को दया आती है, वो मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे मदद करें, क्योंकि जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं सर, वो काफ़ी बार देखा जाता है कि काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई किसी प्रपोजल पे, किसी गाइडलाइन पे, किसी वेलफेयर स्कीम पे कोई काम चल रहा है कि सारी फार्मेसीज़ में ओवर द काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ जैसे कि फर्स्ट एड किट्स हों, रेस्क्यू किट्स हों एनिमल्स एंड बर्ड्स की, क्या ये अवेलेबल करवाई जा सकती हैं? क्या ऐसा कोई काम चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस इशू पे वो काम करें। उन्हें लाखों करोड़ों बेजुबानों की बहुत बहुत दुआ लगे। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। Sir, the question today is on the subject of a separate regulatory body for veterinary medicine. The issue that the honorable member has raised pertains to the state governments and the municipal corporations. Insofar as her query regarding a proposal under discussion at the level of the central government is concerned, there is no such proposal under discussion.
She also wants whether you will consider one. Now, the answer will get a little longer, sir. Our role here of the CDSCO is to basically regulate the new permissions for the new drugs and vaccines for both import and manufacture. Good. This is not something that CDSCO looks into. Supplementary number 4, Shri Brajlal. धन्यवाद चेयरमैन सर। पशुओं में कभी कभी बहुत महामारी आती है, बर्ड फ्लू, और अभी काउज में आया था, उनके स्किन जो है फफोले पड़ते थे और उससे वो मर जाते थे। मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि इस टाइप की जो महामारी पशुओं आए हैं उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। सर, जहाँ तक पशुओं के बीमारियों या महामारियों का सवाल है, इसके लिए जिस भी किस्म के ड्रग्स या वैक्सीन्स की अनुमति का विषय होता है तो CDSCO उसको देखता है। जहाँ तक इन ड्रग्स या वैक्सीन्स के सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी या सेल डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी का सवाल है, वो हमारे स्टेट के बॉडीज़ होते हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं, उसको देखते हैं। अगर कोई नए प्रकार की बीमारी आती है जिसमें किसी नए प्रकार के ड्रग या वैक्सीन की आवश्यकता है, तो उसमें जो CDSCO का एक ड्यू प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं उसके परमिशन के लिए, लेकिन उसकी सेल, उसका मैन्युफैक्चर या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ इंश्योर करना हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स का जिम्मेदारी होती है। श्रीमती मौसम नूर, 5th supplementary. Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister whether the government has planned to set up a scheme on the lines of PM Jan Aushadhi Kendras for increasing the access and availability of veterinary medicines. If yes, the details thereof, and if no, the reasons thereof. Thank you. Honorable Minister. So this does not pertain to us, my department. Question number 77, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. Honorable Minister. The table of the House. Supplementary number 1, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. Thank you, sir. Sir, the government in its reply states that the first round of counselling will be commenced in 14th of August, when it will conclude the process. Honorable Minister. Sir, the question pertains to the commencement of the NEET UG 24 counselling, for which we have already announced that the first round of counselling will begin on the 14th of August, and as per the Supreme Court's order, we will be holding the counselling in 4 rounds. So the registrations are already starting in the first week, and then 4 rounds we will carry it on. Second supplementary. 1 second. You are replying? Yes, sir. I would like to apprise the House of the dates also. First round will be from 14th August till 23rd of August. You said so. Second round would be 15 September till 13 September. Third round would be 26 September to 5th October. And fourth round would be 16th October till 24th October. Second supplementary, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. How will the government ensure that such recurrence do not happen, and whether it plans to bring change in NTA? Honorable Minister. Sir, NTA, as you know, falls under the Ministry of Education. Insofar as the allegations of paper leaks are concerned, sir, the Supreme Court judgment has already come to us, and the House, every member is well aware of the Supreme Court judgment. And I would only like to assure through you, the honourable member, that this government is committed to the best interests of the students, and whatever needed will be done by the government. Third supplementary, Shri Satnam Singh Sandhu. सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में 15 नए एम्स बनाए गए। इसके अलावा एनडीए शासन के दौरान 10 वर्षों दौरान 263 नए मेडिकल कॉलेज खुले। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद 2014 तक भारत में केवल 380 मेडिकल कॉलेज का निर्माण ही किया गया था।
मेडिकल एजुकेशन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI देश का मुख्य मेडिकल एजुकेशन का प्राधिकरण जो 1934 से काम कर रहा था, सितंबर 2020 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन ने ले ली। इस संबंध में क्या मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन के लिए सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए? माननीय मंत्री जी। सर, नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 में बना और हमने नीट को एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम की तरह इंट्रोड्यूस किया फॉर एडमिशंस टू ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फॉर द UG, PG एंड द SS कोर्सेज। और फिलहाल जो सुधार के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको हम अलग से चर्चा कर लेंगे। Supplementary 4, Shri A. Rahim. Thank you for this opportunity. Sir, the number of NEET UG applicants in the country is increasing every year, with applications rising from approximately 11.5 lakhs in 2017 to cover 24 lakhs this year. However, the number of availability of seats has not increased proportionately. Sir, in this context, I would like to ask through you, the Honorable Minister, sir, particularly my question regarding the set up the new aims in Kerala. Sir, we are eagerly waiting for the announcement from the government side. We are eagerly waiting for that. My question that I would like to know from you what is the government stand in this regard? Honorable Minister. So the establishment of AIIMS in Kerala does not pertain to the subject of the question today, but insofar as the increase in the number of the UG and PG seats is concerned, I don't have the exact figures with me right now, but the House is much aware that in the 10 years, we have taken every step to increase the number of both UG and PG seats in medical education. Srimati Sagarika Ghosh, 5th supplementary. Sir, can the Honorable Minister please tell us that the NEET examination, being India's biggest competitive examination with 25 lakh candidates, 2 lakh invigilators, 4,500 examination centers, is the government considering for the next year decentralizing the NEET examination, which will make examining authorities more accountable because the responsibility to conduct the examination can be distributed among regional and state entities. A local examination board is in a better position to understand and tackle the problems faced by students in particular regions. Has the government put in place any plans to decentralize the NEET examination for the next year? Sir, going into the background of the introduction of the NEET examination, prior to this common entrance examination, students had to appear for multiple exams which had a different syllabus, which had a different paper format. So to overcome the hardships of the students, this uniform entrance exam was introduced. Insofar as the decentralization of the examination, once again going back to the earlier system is concerned, I would pass on the suggestions of the Honourable Member to the Honourable Minister of Education. I have told you, there is a mechanism. Question number 78, Dr. Sasmit Patra. Honourable Chairman, sir, question number 78. Honourable Minister. Yes, the Minister is present. A statement Wait for some time, Minister is present. Respected sir, statement is laid on the table of the House, sir. Yes. Supplementary number 1, Dr. Sasmit Patra. Honourable Chairman, sir, this is with reference to item number D of the Honourable Minister's reply, where specific violations have been referred to. My specific question is, there have been several instances when misuse of corporate social responsibility funds, CSR funds, have been flagged. It could either emanate from malpractices of use or non-observance of CSR rules. My question, what are the steps the ministry is taking to ensure
that such misuse of CSR funds, when found, are prevented, and strong punitive measure is taken against the perpetrating companies involved in this and/or the implementing agencies. Thank you. Honorable Minister. Respected member, there are penal provisions for the violation of non-compliance of the transfer of funds, as well as if there is any misappropriation or the funds are not being used properly, there are punitive actions for that. And in that case, for not spending the CSR amount, as well as the non-compliance with the treatment of unspent CSR amount, provisions as prescribed in Section 135, subsection 5 and subsection 6. Following penalties are prescribed under Section 135(7). For the companies, if they non-transfer the funds, twice the unspent amount required to be transferred to any fund included in the Schedule 7 of the Act, as the case may be, or once and 1 crore rupees, whichever is less. Secondly, any officer on the default in this case, then that officer has to pay 1/10 of the unspent amount or 2 lakh rupees, whichever is less. Second supplementary, Dr. Sasmit Patra. Thank you, Honorable Chairman, sir. My second supplementary is with reference to item number C of the reply of the Honorable Minister. In the answer, the Honorable Minister has categorically stated that there is no specific study or committee report on the effectiveness of utilization of CSR funds in the country. It's in the reply. It also states that there was, to ensure a more robust and coherent CSR regulatory and policy framework, the government instituted a high-level committee in 2015, which provided its recommendations in 2018. However, my question emanates from the fact that despite 5 years after the committee's recommendations have come in, the same have not been implemented. Would the Honorable Minister want to specify by when the recommendations of this high-level committee instituted to have a robust and coherent CSR regulatory and policy framework would be implemented? I need an assurance from the Honorable Minister if the ministry is considering it. Honorable Minister. Respected member, there are 2 instances when 2 high-level committees have been constituted for this. One in 2015, the recommendations of those were the CSR spend data of the company may be placed in the public domain, which have been followed. Setting up of national CSR awards, which has also been followed. Issuance of FAQ by the ministry on various issues related to CSR. These are there on the websites. Constitution of another high-level committee after 3 years to review the CSR data and other implementational issues related to CSR. So according to that, another high-level committee in 2018 has been constituted, whose recommendations are as follows. Non-compliance of CSR may be made a civil wrong, so it is already there. Companies having CSR amount less than 50 lakhs may be exempt from constituting CSR committee. It is being followed. Transfer of unspent CSR fund to separate designated account created for purpose. This is also being followed. Mandatory registration for implementing agencies. This is a sort of rule. Impact assessment of certain categories of projects by certain class of companies. Development of CSR exchange portal. So all the suggestions and recommendations of high-level committees are being followed. Third supplementary, Shri Mukul Vasnik. धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने
एक स्कीम की घोषणा करी जिसके ज़रिए ये कहा गया कि 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेंगे और ये नौजवानों को साल का 60,000 रुपये मिलेगा, महीने का 5,000। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है, लेकिन स्कीम को अगर देखें तो पता चलता है कि इसके ऊपर 60,000 करोड़ कम से कम लगेंगे। आर यू ऑन क्वेश्चन नंबर 78? यहाँ पे मैं ये माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया कि 500 चुने हुए कंपनीज की ओर से CSR फंड ये नौजवानों के ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इसकी क्या गाइडलाइंस है, कंपनीज का चयन कैसा होगा, ये इंटर्न्स का चयन कैसा होगा, क्या इंटर्न्स में दलित आदिवासी महिलाओं को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई आयु सीमा रहेगी नहीं रहेगी, ये माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। माननीय सदस्य, अभी तो बजट पास होना बाकी है। माननीय मंत्री। ऑनरेबल मेंबर, हालांकि इस क्वेश्चन के प्रीव्यू में आदरणीय सदस्य का ये प्रश्न नहीं आता है, पर इसके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी दे सकता हूँ। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या दैट क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. That is why it is there in the budget, and rupees 2,000 crore have been assigned for this. Further, the guidelines are being framed and will know the House and the nation very soon. Supplementary number 4, Shri Naresh Bansal. There's a complete answer. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि CSR फंड से कुछ राशि सांसद आदर्श ग्राम अथवा सांसदों द्वारा अनुमोदित काम के लिए भी तय की जाए, इस पर सरकार कुछ विचार कर रही है क्या? माननीय मंत्री जी, ये सुझाव है। आपका सुझाव आदरणीय सदस्यगण अच्छा है, लेकिन CSR अमाउंट को जो स्टिपुलेटेड होता है उसको खर्च करने की एक विधि कंपनीज एक्ट में तय की गई है। अभी उसके अकॉर्डिंग ही इन अमाउंट्स को खर्च किया जा सकेगा, जो कि शेड्यूल 7 के अंदर 12 मद हैं। उन मदों में ही खर्च किया जा सकता है। अभी इसके बारे में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। कुछ अगर ऐसा कोई गाइडलाइन बनेगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। सप्लीमेंट्री नंबर 5, Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, the proper study on the expenditure of the CSR fund is very necessary in this time. But till now, that such a study is not conducted by the government. Here, these CSR funds, some of the companies are spending for their own promotion, their own benefit. It should be controlled. That is why my question is whether the government has any plan to control such expenditure of the company, and whether government have any plan to promote the companies to spend the expenditure for the benefit of the common people. And some of areas, this CSR fund is getting only the ruling, the government, the supporters of the ruling government. It should be controlled. So that is why my question is whether government have any plan to control such a illness in the sector. Honorable Minister. सम्मानित सदस्य, आपके प्रश्न में मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि ये कंपनी सेंट्रिक एक्टिविटीज़ है, जो बोर्ड की पावर है कहाँ खर्च करना है, और उसके लिए कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में जो 12 मद दिए गए हैं उसमें खर्च करना उनको आवश्यक है। अपना पूरा पैसा खर्च करना उस फाइनेंशियल ईयर में आवश्यक है। अगर वो उन बातों से कंट्रावीन करते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज का प्रोविजन है जो अभी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 79, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे।
आदरणीय सभापति महोदय, क्वेश्चन नंबर 79। ऑनरेबल मिनिस्टर। पटल पर रख दी गई। सप्लीमेंट्री नंबर 1 डॉक्टर अनिल सुखदेव राव मोंडे। आदरणीय सभापति महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में बैंकों की विदेशियों की शाखाएं बता गई है, संख्या उसकी बताइए। विदेशों में जो भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं वो क्या बढ़ रही है या कम हो रही है, और बढ़ाने के लिए शासन के सरकार के क्या प्रयास हो रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जहाँ तक बैंकों के क्रियाकलापों का सवाल है कि बैंक शुरू करने से या बंद करने का बहुधा व्यावसायिक आधार पर तय किया जाता है, और व्यावसायिक आधार पर लाभ हानि का निर्णय करने के पश्चात तय प्रक्रिया का पालन होता है। इसमें बैंक बोर्ड की अनुमति लेता है, आरबीआई की अनुमति लेता है तथा आवश्यकता सरकार की और विदेश संस्थाओं की अनुमति ली जाती है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा है कि विदेशों में शाखा बढ़ रही है या घट रही है, अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष विदेशी जो शाखा थी वो 2014 में 68 थी और 2024 में 99 हुई, कम हुई है। लेकिन अगर सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर शाखाएं देखें तो 359 शाखाएं जो पहले थी वो 543 हुई हैं, और प्रतिनिधि कार्यालय अगर देखें तो 33 थी और 11 हुई हैं। कुल मिला के 560 शाखाएं पहले थीं और 644 शाखाएं अब हो गई हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अनिल सुखदेव राव मोंडे। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनके प्रेरणा से जो गुजरात में गिफ्ट सिटी बनी है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिजनेस चलता है, वह इकोनॉमिकली फिटनेस सिटी बनाने का लक्ष्य है। इस गिफ्ट सिटी में बैंकों का परिचालन किस प्रकार होता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है? ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है तो यह मॉडल मुंबई और अन्य बिजनेस सेंटर में चलाने की क्या योजना है? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो गिफ्ट सिटी का विषय उठाया है, गिफ्ट सिटी में जो कुल सरकारी बैंक खुले हुए हैं वो 6 शाखाएं हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडिया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एमबीआई, एसबीआई बैंक, जो एक एक शाखाएं खुली हैं। और अगर देखें तो 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार गिफ्ट सिटी में सरकारी बैंकों की इन 6 शाखाओं का कुल कारोबार 1,80,000 करोड़ रुपए है, जिसके माध्यम से लगभग 1250 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। और जहाँ तक गिफ्ट सिटी में खुली बैंक ब्रांच का नियंत्रण का सवाल है, वो आरबीआई से नहीं बल्कि आईएफएससीए के माध्यम से होता है, और तकनीकी रूप से इस ब्रांच को विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है। थर्ड सप्लीमेंट्री सुश्री डोला सेन। Thank you, Chairman, sir. We have come to know from newspaper that SBI is planning to shift a major part of forex operations of Global Market Unit situated in Kolkata to Mumbai. SBI plans to shift the centralized global bank office, CGBO also, which works 24/7 from time zone, Sydney, Bahrain, Hong Kong, London and New York, that is important central treasuries. What steps can be taken by the union government and the concerned ministry through you, I want to know, sir, so that the operations of the prestigious Global Market Unit Kolkata of State Bank of India, PSB, public sector bank, continues to function from Kolkata and no more deprivation to West Bengal. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही बताया कि बैंक अपने क्रियाकलापों के आधार पर कहीं ना कहीं अपना निर्णय लेती रहती है, और उसमें आरबीआई का भी परमिशन होता है, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होती है, उसके अनुमति के आधार पर बैंक कहाँ खोला जाए, कहाँ पर बंद किया जाए, उसका निर्णय बैंक लेती रहती है। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री राघव चड्ढा। थैंक यू सर। सर, दुनिया भर में बैंक्स अपनी ब्रांचेस यानी कि अपनी शाखाओं को एक्सपैंड करते हुए अन्य देशों में शाखाएं खोल रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि वित्तीय वर्ष 18-19 से लेकर आज तक भारतीय बैंकों की जितनी शाखाएं विदेशों में थीं वो 25% बंद हो गई हैं। 25% ऑफ फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स हैव बीन शट। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि क्यों
हमारे देश के बैंकों को विदेशों में और उनकी फॉरेन ब्रांचेस को बिजनेस नहीं मिल रहा है, जबकि भारत के लोग और इंडियन ओरिजिन के लोग विदेशों में बसते हैं भारी तादाद में, क्यों हमारे बैंक्स बिजनेस अट्रैक्ट करने में फेल हो रहे हैं? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि जो पहले पूरक प्रश्न में माननीय सदस्य ने पूछा था कि विदेशों में बैंक बंद हो रहा है, और मैंने पहले ही बताया कि पहले से जो 560 शाखाएं होती थी अब बढ़ करके 644 शाखाएं हुई हैं। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, अगर देखें तो 2000 में जहां हमारी इन सभी शाखाओं ने 11,36,145 करोड़ का बिजनेस किया था, और 2024 में आज 17,68,083 करोड़ का बिजनेस किया है। Supplementary number 5. Ma'am, he asked 2 points. Number is decreasing, it is increasing. Reply is there very comprehensive. Shri, take request to mechanism. Shri Shakti Singh Goyal, 5th supplementary, please. Shri Shakti Singh Goyal, 5th supplementary. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके ज़रिए ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई गाइडलाइन बनी हुई है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवरसीज़ में जहाँ आप खोल रहे हो उसके लिए कोई गाइडलाइन बनाई है, और जहाँ पे आपके फिगर्स के हिसाब से 11 लाख से 17 लाख करोड़ का बिजनेस आपका बढ़ा है, तो जब आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो ब्रांचेस कम क्यों हो रही है? माननीय मंत्री, पहले भी कहा कि ब्रांच भले 167 से 99 कम हुई है, लेकिन अगर देखें तो सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर शाखाएं, सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर की शाखाएं मिस्टर राघव चड्डा में भारी बढ़ोतरी हुई है। सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर के शाखाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। और जहां तक बिजनेस का सवाल हो, मैंने पहले बताया बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, और जो पहले कुल मिलाकर 560 शाखाएं हुआ करती थी आज 644 शाखाएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 80 श्रीमती महुआ माझी। Honorable Chairman, sir, question number 80. Honorable Minister. First supplementary श्रीमती महुआ माझी। Honorable Chairman, sir, कई समाजों में आज भी HIV संक्रमण से पीड़ित मां को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है। उनके साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है, चाहे वह हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्रों की गलती से इन्फेक्टेड इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से ही अनजाने में संक्रमित क्यों ना हो जाए। इस गलत धारणा को लोगों के मन से दूर करके पीड़ित महिला के साथ सम्मानजनक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए और वह सामान्य जीवन जी सके, इसके लिए क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, हमारी सरकार नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम के फेज़ 5 को इस समय इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसमें खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए ड्यूअल एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिविलिस, इस पर हम काम कर रहे हैं। वी हैव इंटीग्रेटेड दिस विद NHM। तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट विमेन ANC चेकअप के लिए आती हैं, उनका हम कंपलसरी टेस्टिंग फॉर HIV एंड सिफिलिस भी करते हैं। हमारे फेज़ 5 के अंतर्गत तमाम सारे जो गोल्स हैं, उसमें एक यह भी है कि स्टिग्मा इससे जुड़ा हुआ जो है उसको हमें कम करना है, और इसके लिए निरंतर जो हमारे ग्रास रूट लेवल और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी हम ट्रेनिंग करके हैं, और साथ ही साथ समाज में भी जागरूकता लाते हैं। और जो हमारी महिलाएं स्वयं आती भी हैं टेस्टिंग के लिए, अगर वो HIV पॉजिटिव पाई जाती हैं तो उनकी भी काउंसलिंग के प्रबंध रहते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको हम ANC चेकअप के दौरान ही उनकी टेस्टिंग भी कर सकें और उनको ART ट्रीटमेंट पे भी डाल सकें, और स्टिग्मा को जितना भी हम कम कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर वर्कर्स में भी, और जो हमारी महिलाएं हैं उसमें भी हमारी कोशिश लगातार जारी है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती महुआ माझी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जागरूकता के अभाव में बिना ट्रीटमेंट के HIV संक्रमित माताओं के लगभग 25 to 30% नवजात बच्चे HIV से संक्रमित पाए जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि HIV संक्रमित सिंगल मदर, जिसे घर से, परिवार से या समाज से अलग थलग कर दिया जाता है, कि बच्चों को चाहे वे संक्रमित हों या ना हों, समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर स्वाभाविक जीवन जीने के लिए क्या सरकार अपनी तरफ से कोई व्यवस्था करती है? माननीय मंत्री जी।
पहली बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक HIV का सवाल है, एक तो जो स्टिग्मा की बात की गई, इसमें हेल्थ वर्कर से लेकर के डॉक्टर से लेकर के हेल्थ की सारी फ्रेटर्निटी को ये ध्यान में रखना है कि द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, इट कैनॉट बी डाइवर्ज्ड टू एनीबडी। इसलिए हम लोगों ने इस बात को प्रयास किया है और कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के कारण यह इस तरह की समस्या से हमने इसको रोकने का प्रयास किया है। दूसरी बात कि कोई भी माता फर्स्ट 3 मंथ्स के कंसेप्शन के बाद जब वो किसी भी सेंटर पर जाती है, और जो जाना आवश्यक ही है क्योंकि हमारे आरोग्य मंदिर जो 1,73,000 हैं वो सभी माताओं की ट्रैकिंग करती है जो कंसीव करती हैं। फर्स्ट 3 महीने में उनका HIV का टेस्ट होता है, इट्स कंपल्सरी, और इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी रिएक्टिव यानी HIV पॉजिटिव के सिग्नल्स मिलते हैं तो उसको हम ICTC सेंटर को भेजते हैं, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स को, और काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर से वो उसकी क्लैरिटी होती है, वो उसमें उसकी कंफर्मेशन होती है। वंस द कंफर्मेशन इज डन, कोई भी भारत का के पेशेंट उसको हम टेस्ट एंड ट्रीट पर डालते हैं। द मोमेंट इट इज़ टेस्टेड पॉजिटिव, ट्रीटमेंट स्टार्ट्स देयर आफ्टर, और वो फ्री ट्रीटमेंट है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, सारी ज़िंदगी उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है। उस व्यक्ति, उस माता को किसी एक हेल्थ सेंटर से जोड़ा जाता है जहां हम उसकी ट्रैकिंग करते हैं कि वो कंपल्सरी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रहे हैं कि नहीं ले रही है। जब प्रेगनेंसी की डिलीवरी का समय आता है तो उस समय उसके जो लोड है वायरस का उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, और मिनिमाइज़ करने के साथ साथ डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद माता को भी और बच्चे को भी 72 घंटे के बाद से, और डिपेंडिंग अपॉन द उसमें हम प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं, यानी इन एंटिसिपेशन देते हैं, और बच्चे को भी हम सिरप के द्वारा एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, और वो ट्रीटमेंट 72 घंटे के बाद से लेकर के कभी 12 वीक्स कभी 16 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, और हम रेगुलर चेकअप करते हैं कि वो उसको वो नहीं हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पॉजिटिविटी डिलीवर्ड बच्चों में आया है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% टू 3 to 4%, इतना नीचे उसको हम लेकर के आए हैं। इसलिए इसकी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, और एक ज़माने में हम सब लोग ये 80 के दशक में और 90 के दशक में हम लोगों ने देखा एड्स मतलब डेथ वारंट, एड वॉज लाइक ए डेथ वारंट। आज यह जीवन में इसके साथ जी करके लाखों लोग हैं जिन्होंने जीवन जिया है, और इसलिए इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हुई है। और मैं यहाँ जस्ट माननीय सभापति जी आपके परमिशन से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया है इस मानवता, अपनी मानवता के लिए। ये ड्रग बहुत कॉस्टली ड्रग थी और इसको कोई कॉमन मैन इसको ले नहीं सकता था, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इसका जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाया और जो इसको आगे प्रमोट किया वो बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत चीप बनाया, जो सारी दुनिया के लिए और मानवता के लिए, सारे देशों के लिए, विशेष करके उन देशों में जहाँ पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी उसको भी कंट्रोल करने में बहुत कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक एड्स का सवाल है, ये प्रोसेस के माध्यम से आज एक HIV माता भी एक सेफ डिलीवरी में एक सेफ बच्चा विदाउट HIV डिलीवर करती है, ये स्थिति है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर भगवत कराड। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, और मंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के बारे में बताया। इज देयर एनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द HIV वुमन एंड HIV पर्सन आफ्टर दे आर डायग्नोज एज HIV पॉजिटिव? तो उनका आइसोलेशन करने के बाद रिहेबिलिटेशन करके क्या क्या सेंटर्स है, कितने सेंटर्स है, गवर्नमेंट क्या मदद करती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है उसको समझा दिया है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी हाउस को बताया
कि जो भी हमारे HIV पेशेंट्स होते हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनका पूरा बताया कि हम उनको पहले तो डुअल टेस्ट किट्स में उनको देखते हैं कि अगर वो रिएक्टिव हैं तो ICTC सेंटर से उनको लिंकअप करते हैं। अगर वो कंफर्म डायग्नोसिस उनकी आती है तो हम उसे जो नियरेस्ट एंटी रेट्रोवायरल सेंटर होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उस सेंटर के साथ कनेक्ट होने के बाद उनकी काउंसलिंग भी चलती है, उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है, उसकी कंप्लायंस को भी मॉनिटर किया जाता है और साथ ही उनके जो वायरल लोड असेसमेंट है वो भी हम रेगुलरली करते हैं। लेकिन रिहैब में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य जीवन जी सकते हैं, अपने घर परिवार के बीच में रह सकते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो रेगुलरली फॉलो किया जाता है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री रजनी अशोक राव पाटिल। Sir, through you, I would like to state that how will the government achieve the revised target of eliminating vertical transmission mother to child of HIV in India by 2025 when the original goal was set at 2020. Honorable Minister. Fast on it, और ये जो बता रहे हैं, I will look into it, what is the situation, लेकिन HIV is under control, जैसा मैंने कहा 30%, मैं फिर कह रहा हूँ, रेणुका जी, no, you are right, Renuka ji, but you have to get permission for it, please. You are a very senior member. Eh? Yeah. No, permission from the chair. Permission from the chair. Permission from the chair. नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रश्न जो है वो रिलेटेड है प्रेग्नेंट मदर का और उसके दृष्टि से मैंने उत्तर दिया है। जहां तक आपने प्रेवलेंस की बात कही है, मैंने पहले कहा कि HIV इज नाउ अंडर कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2, फ्री ट्रीटमेंट इज देयर, और फ्री ट्रीटमेंट के साथ साथ हम फ्री ट्रीटमेंट इज देयर, टेस्ट एंड ट्रीट। इसलिए कोई भी पेशेंट जिसको भी हम HIV डिटेक्ट करते हैं उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन देने की व्यवस्था भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है। और इसीलिए इसकी प्रेवलेंस, देखिए इन्फेक्शन के कई सोर्सेज हो सकते हैं, तो अब वो इन्फेक्शन चलता रहता है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट है और वो अंडर कंट्रोल है। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्री संजीव अरोड़ा। Sir, thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask a question to Honorable Minister. Recently in Germany, a HIV-infected patient was reportedly cured of it by means of stem cell transplant. Has any research in the same direction been conducted in India, or do we plan to conduct the same in near future? Honorable Minister. The scientific innovations and research is a continuous process. And I don't have any information that whether HIV के लिए stem cell के माध्यम से कुछ किया जा रहा है, but it is a continuous process. हमारे यहाँ scientists keep on deliberating on it. जैसे जैसे दवाई मार्केट में आती है वो उसको लोगों के उपयोग के लिए हमारे जो कंट्रोल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेगुलेटरी सिस्टम्स को पूरा करके उसको हम क्वेश्चन नंबर 81 श्री अब्दुल वहाब। ऑनरेबल मिनिस्टर is laid on the table of the house. Supplementary number 1 श्री अब्दुल वहाब। Medical Council of India is the regulatory body for doctors. Similarly, any proposal with the government to frame a regulator under any law as far as acupuncture is concerned. Honorable Minister. सर, ये प्रश्न जो है वो एक्यूपंक्चर को की विधा को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। सरकार के एक्टिव कंसिडरेशन में है और सरकार ने इसमें स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स
फॉर प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपेंचर क्वालिफाइड मोड ऑफ थेरेपी, इसको स्वीकृति दे करके इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई और उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में हेल्थ रिसर्च, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष डिपार्टमेंट, इन सब लोगों ने उसमें डेलिब्रेट किया और डेलिब्रेट करने के बाद 2018 में एक्यूपेंचर को एक्सेप्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, इंडिकेशंस फॉर विच देयर इज़ एविडेंस, एक्सपर्टाइज एग्जिस्ट, और इसलिए इसकी टीचिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन आई। ये आईडीसी की रिपोर्ट के बाद एपेक्स कमेटी ऑन एक्यूपंक्चर ये कॉन्स्टिट्यूट की गई फॉर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन, और रेगुलेशन के साथ साथ ये कोर्स बनाना, उनको एग्जामिनेशंस करना, कोर्सेज के साथ साथ कौन डिप्लोमा का क्या कोर्स होगा, डिग्री का क्या कोर्स होगा, हमारे क्या उसके टेम्पलेट होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, इस पर उन्होंने वर्कआउट करना प्रारंभ किया है। अभी मैं सदस्य को एक ही बात का आश्वासन देना चाहता हूं, जो इन्होंने प्रश्न में पूछा है, कि इसको एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए। जैसे इन्होंने कहा एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, डीसीआई है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से आयुर्वेदा में उनके अपने आयुर्वेदा के काउंसिल्स हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और मैं सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल जो डिस्कशंस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ डेलिब्रेटिंग ऑन इट। Second supplementary, Shri Abdul Wahab. Having some needles in their hands. A lot of fake acupuncturists are there in the country. Any measures to weed out these sort of fake doctors? Honorable Minister. We are working fast on it. Very soon we will come with a regulatory system, and after that regulatory system we will take care, we are going to see to it कि कौन किसके पास डिग्री है, क्या है और किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। Question number 82, Shri P. Wilson. Not present. Honorable Minister. The house, table of the house, sir. Third supplementary, Srimati Sulata Dev. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunities. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि जो पीएम सोलार टब की योजना है, उड़ीसा से कितने एप्लीकेशन ऑनलाइन में, कितने पोर्टल में सबमिट हुए हैं और कितने एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है, कितने लोगों को ये सोलार टब के लिए परमिशन दिया गया है, वो यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। माननीय मंत्री जी। योजना जो है ये तो प्रधानमंत्री सूर्य योजना, अभी तक मैं पहले देश का एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। इट स्टार्टेड ऑन 29th February, सब्सिक्वेंटली तो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह के बाद अभी एक महीने से इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। और जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो उड़ीसा का मैं डिटेल अभी इसमें हर राज्य में फॉर ओवरऑल अगर बताना है तो 1.3 करोड़ रजिस्ट्रेशंस आर डन इन PMJSY एंड उड़ीसा रजिस्ट्रेशंस हुआ है 12.3 लाख, एप्लीकेशंस आया है 33,681 और इंस्टॉलेशन हुआ है 16,000 हुआ है। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिस्कॉम्स आर दी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, मैं अनुरोध करता हूं, जो मान्य सदस्य अभी सब प्रश्न पूछने जा रहा है, तो दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स जो बहुत स्टेट्स ने, मोस्ट ऑफ द स्टेट, सम ऑफ द स्टेट्स आर गिविंग फ्री पावर unsustainably stepping into the fiscal crisis. To ensure the free power with no physical load and doing its sustainability, PMJSY is the best solution. तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि
सभी जो सदस्य है अपने अपने राज्य सरकारों से इम्प्रेशन करके, इन्फ्लुएंस करके इसमें जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि अभी एकदम फास्ट पेज में हमारा शुरू हो गया है। आफ्टर मोदी 3 नाउ द इम्प्लीमेंटेशन फेज हैज़ बीन वेरी फास्ट। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जितना एप्लीकेशन आया है उससे हिसाब से रजिस्ट्रेशन बहुत राज्यों में कम हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इंस्टॉलेशन कम हुआ है। तो इसीलिए डिस्कॉम्स अगर एक्टिव रोल लेते हैं तो हम तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। श्री मिलिंद देवड़ा, सप्लीमेंट्री नंबर 4. Sir, this is a very important scheme from an environmental standpoint and from solving the infrastructure problem in our country, especially with electricity. And इस स्कीम का रूरल एरियाज़ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन शहरी इलाकों में भी इसका बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि बिल्डिंग सिटीज़ में बिल्डिंग्स होते हैं, हाउस होल्ड्स नहीं हैं, देर आर सोसाइटीज़, मेनी टाइम्स बिल्डिंग्स ऑन द टेरेसेस आर फ्री. So my first question, sir, through you would be, how much of the funds that are 75,000 crores allocated for this project are earmarked for cities versus rural areas? The second point, which Honorable Minister has raised, that MPs should raise this issue with their state governments. Sir, in your reply, you've said that it is the role of respective state governments, DISCOMs, to promote the installation of solar rooftop system. My limited suggestion, sir, is given the poor financial health of DISCOMs across the country, would the government and the ministry in particular be open to having a marketing fund across the country to create awareness about this project? Honorable Minister. Sir, as far as rural and urban, there is no division, and whoever wants to install rooftop solar under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, we are supporting that, and we have continuously following up the various DISCOMs of the states to implement it as fast as possible. And second question is about the incentivizing the DISCOM. As it is per installation for the urban, either it is urban local body or in the local body, we are giving 1,000 rupees per installation to the DISCOM, and 1,000 rupees for the local urban bodies. And as far as common building is concerned, up to 500 kilowatt, we are giving subsidy. We are giving subsidy of around rupees 80,000 per kilowatt. It is given for the common building. One second. No, awareness. No, his question is whether you will market this scheme so that more and more people come to know about it and they can take advantage of it. That's your question. So the pointed question is, DISCOMs को हमको incentivize कर रहा है. DISCOM के लिए जो incentivize कर रहे हैं, उसी पैसा में उन लोगों को marketing करना है. श्रीमती रंजीत रंजन, last supplementary on this. धन्यवाद जी. मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या PM सूर्य घर बिजली योजना मुफ्त है, क्योंकि ये है नहीं. क्या ये सही नहीं कि आप सोलर के पर केजी वाट पे, जिसका कॉस्ट लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये है, आप 50% लगभग सब्सिडी दे रहे हैं और 7% ब्याज रूरल और अर्बन के लिए ले रहे हैं, यानी एक पैनल पे लगभग 1400 से 1500 रुपए एक गरीब आदमी को व्यय करना है. और 300 यूनिट आप बिजली फ्री की बात कर रहे हैं. अगर 3 पंखे या 3 बल्ब या 4 बल्ब जलाने के लिए लगभग 2.5 से 3 पैनल आपको लगाने हैं, जिसका लगभग खर्च जो है 1.5 लाख के करीब है, जिसमें 75,000 आप सब्सिडी देंगे. 75,000 में लगभग 4500 से 5,000 रुपए ब्याज के रूप में 7% एक गरीब व्यक्ति को देना पड़ेगा. तो ये बिजली मुफ्त कैसे है? ये बजट में भी गुमराह किया गया है, आपके द्वारा भी किया जा रहा है. ये तो 50% सब्सिडी की बात है, जिसमें 3 बल्ब जलाने के लिए भी गांव के व्यक्ति को 4500 रुपए देने पड़ेंगे ब्याज के. You are giving. What is your question? Ask your supplementary. सर, ये मुफ्त है क्या? इसमें 50% ब्याज गरीब को नहीं देना है क्या? 300 यूनिट बिजली लगाने में 75,000 पे 5,000 रुपए उनको ब्याज. Honorable Minister. Sir, Honorable Minister. Question is,
One is sustainability. Second is how it is moved. I will try to explain, sir. 1 second. The approximate cost of 3 kilowatt, which we are subsidizing around 78,000 crores, 78,000 rupees per for 3 kilowatt installation. Normally 3 kilowatt generates 300 units, and उसके लिए हम approximately खर्चा है 1,50,000. 1,50,000 में 78,000 रुपीस हम दे रहे हैं सब्सिडी के रूप में, और इंटरेस्ट सबवेंशन 7% इंटरेस्ट में हम बाकी जो उनको फाइनेंस लगाना है उसके लिए बैंक से पैसा दे रहे हैं. तो 300 के कम जो यूनिट यूज़ करते हैं, मीन्स इनका जनरेट जब ज़्यादा होता है वो तो डिस्कॉम में सेल करते हैं, उसके लिए पैसा वापस आ जाता है. तो ओवरऑल फॉर ए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ऑफ 5 पीपल, this is definitely 300 unit is more than sufficient, and this excess electricity will be purchased because there is an obligation that every DISCOM has to purchase renewable energy. By that they will be paid back and ultimately it becomes free, sir. Question number 83, Shri Sandeep Kumar Pathak. Honorable Minister, nothing is going on record. There is only one supplementary, Shri Maharaja Sanjora Lishemba. Your supplementary, sir. Sir, my supplementary is not to question IT2, sir. It was over, sir. IT1, question number IT2 में, sir. No, sir. Yes. Sir, IT2 में. Question number IT2 है ना, sir? Question 83, yes. IT3 में नहीं है, sir. IT2 में question क्या है, sir? Oh, it's given 83. Doesn't matter. Next time. Yes, sir. That's all. So no supplementary. Question number 84, Shri R. Girirajan. Question number 84, sir. Honorable Minister. Supplementary number 1, Shri R. Girirajan. Honorable Chairman, sir, thanks to. The Honorable Minister in his reply has informed that the DRI officials have confiscated about 8,600 kgs of smuggled gold in the last 3 years. I believe many thousand kgs of gold would have confiscated in the last 10 years and kept in government custody. With the escalating gold prices, I would like to know from the Honorable Minister whether the government has deposited the confiscated gold in its gold reserves, and if so, the total quantity of value of confiscated gold in government reserves at present. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, जो जब्त सोने होते हैं वो आरबीआई में जमा कर दिए जाते हैं और इससे भारत के गोल्ड रिजर्व में वृद्धि होती है और सोने के मूल्य के बराबर पैसा सीबीआईसी के खाते में जमा हो जाता है. और अगर देखें तो 21-22 में जहां पर निपटाया गया सोना 4614 था और धन प्राप्ति हुआ था 2704 रुपये. जहां तक 22-23 का है कि 5426 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ था, जिसमें उसका मूल्य था 2539, और 23-24 में जहां 4162 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ था उसमें 2120 का सोना प्राप्त हुआ था. Second supplementary, Shri R. Girirajan. Whether the government has taken any stringent action against DRI officials who indirectly involved or aid the smuggling of gold through various airports in the country, and if so, the details of thereof. Honorable Minister. सभापति महोदय, ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं और डीआरआई के जो संबंधित अधिकारी होते हैं समय समय पर विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है और सदस्य को अगर पूरा विवरण चाहिए तो उनको मैं उपलब्ध करा दूंगा. Question number 85, Shri Santosh Kumar P. Not present. Honorable Minister. The answer is laid on the table of the House. Ayodhya Rami Reddy A. Supplementary. Namaste, sir. How is the government promoting the
integration of organic fertilizers with the traditional and modern agricultural practices in Andhra Pradesh? Are there any pilot projects or partnerships with local farmers to demonstrate the benefits and practical application of organic fertilizers? Question hour over. Further discussion on the Union Budget 2024-25 and the Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25. I now call upon members whose names have been received for participation in the discussion